ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے خبر آپ کو دیں. پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے فی الفور انتخابات کی تاریخ دینے کا مطالبہ کر دیا. سی سی اجلاس کے بعد بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہم عوام سے نہیں چھپ رہے, الیکشن کے لیے تیار ہیں. آپ ٹی وی پر دیکھ لیں کس کی شکلیں مایوس نظر آتی ہیں. ایک اتحادی کے لیے کہا جاتا تھا مشکل میں پاؤں پکڑتے ہیں اور بعد میں گلا پکڑتے ہیں. ہم مظلوم اور نہ کسی مشکل میں ہیں, اس لیول پلینگ فیلڈ کے عادی ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی نے نیب ترامیم سے متعلق فیصلے پر کہا سپریم کورٹ سے اسی فیصلے کی توقع تھی, ہمارے لیے نیب کوئی نئی چیز نہیں. Responsibility of the Election Commission of Pakistan to announce an election date and schedule immediately as the Constitution required. Members also expressed concern on the issue of a level playing field in the country. And subsequently, President Zardari was empowered by the Central Executive Committee of the party to address the concerns raised by members. کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کسی ایک صوبے تک محدود سمجھتے ہیں. پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جنم لیا. پیپلز پارٹی کو آؤٹ رکھنے کی سازش. ہمارا ایک اتحادی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ مشکل میں ہیں پاؤں پکڑتے ہیں, مگر جب مشکل سے نکلتے ہیں وہ گلا پکڑتے ہیں. ہم نہ مظلوم ہیں نہ کسی مشکل میں ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات ہے اس کے حوالے سے ہم عادی ہیں. اب آج ذرا ٹی وی کھول دے اور اسکرینز پہ دیکھیں کہ کس کی شکلیں مایوس نظر آ رہے ہیں اور کس کی شکلیں ویسے ہی ہے جیسے ہمیشہ ہیں. مذاق بن چکا ہے جو بہانے رانا صاحب دے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نیب کوئی نیا چیز نہیں ہے. یہ جو فیصلہ آیا آج سپریم کورٹ کی طرف سے اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا. اور انتخابات کا شیڈیول دسمبر کے پہلے ہفتے میں جاری ہونے کا امکان ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں زاہد مشوانی سے جانتے ہیں. زاہد بتائیے. جنوری کے تیسرے ہفتے میں عام انتخابات کرانے کی تیاریاں جو ہیں وہ تیز کر دی گئی ہیں, جبکہ انتخابات کا شیڈول دسمبر کے پہلے ہفتے میں جاری ہونے کا امکان ہے. الیکشن کمیشن کے معتبر ذرائع نے بتایا کہ شیڈول کے ساتھ ہی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا, اور بتایا گیا ہے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی انتخابات ایک ہی دن ہوں گے. عام انتخابات پتھر پر لکیر ہیں اور انتخابات میں کوئی رکاوٹ نہیں. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی کے دباؤ کا شکار ہے, اور بتایا گیا کہ 30 نومبر کو حلقہ مدیاں مکمل کر لی جائیں گی. حلقہ مدیاں مکمل ہونے کے بعد پولنگ کی تاریخ جو ہے 54 دن بیچ میں ہیں, اور اس حساب سے جو عام انتخابات ہیں جنوری کے تیسرے ہفتے میں کرائے جا سکتے ہیں. الیکشن کمیشن اس کے حوالے سے کہا گیا کہ اپنی آئینی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے, اور انتخاب تاریخ کا اعلان اور اس کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہے. تاہم عام انتخابات کی تیاریاں ہیں اور یہ دو ٹوک بات چیت ہے, اور دسمبر کے حوالے سے بھی کہا گیا, اور عام انتخابات جنوری کے تیسرے ہفتے میں کرانے کے لیے کہا گیا کہ ہر صورت میں انتخابات کرائے جائیں گے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ زاہد. آپ کو لیے چلیں گے نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کا تفصیلات زر کے حوالے سے اہم اعلان آپ کو دکھاتے ہیں. اور ان کے جو لائقین ہیں وہ ریسیو کریں ٹوٹلی فری آف کاسٹ ریمیٹنسز, اور یہ ایلیجبل جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ $100 کے لگ بھگ اور اس کے اوپر کے لیے یہ دی جاتی ہے فیسلٹی. اور یہ اسکیم 1985 سے چل رہی ہے. اس اسکیم کے تحت کم از کم 20 سعودی ریال ہم پے کرتے ہیں پارٹیسپیٹنگ بینکس کو فار چینلائزنگ ہوم ریمیٹنسز, جو کہ شیئر کرتے ہیں پاکستانی بینکس اور اوورسیز فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. اس کا برڈن اور کوئی فی ریمیٹر کو نہیں پے کرنی پڑتی ہے یا ان کے جو ریسیپینٹ ہیں ان کو. دوسری اسکیم ہے سونی دھرتی ریمیٹنس پروگرام, جو کہ کچھ پارٹنرز کے ساتھ ڈیولپ کی گئی ہے, جیسے کہ پی آئی ہے, یوٹیلیٹی سٹورز ہیں, فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے, اور یہ ڈائریکٹلی انسینٹیوائز کرتی ہے اوورسیز پاکستانیز اور ان کے فیملیز کو. اور بیسیکلی یہ جو کنزیومر پل کے بیسس پہ اس انسینٹو کو ڈیزائن کیا گیا ہے, اور اس میں جو ریمیٹر ہے وہ
बेसिकली अपने पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करके रिडीम कर सकते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी और उनके जो बेनिफिशरीज हैं उनकी हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनको जो पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर एंटिटीज सपोर्ट करती हैं उसको ऑलमोस्ट दे आर अवेल फ्री ऑफ कॉस्ट दीज सर्विसेज और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको रीइंबर्स करती है पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को। एक और स्कीम है एक्सचेंज कंपनीज की, जहां पे जो एक्सचेंज कंपनीज आप लोगों से पैसा लेके रेमिटेंसेस फॉरवर्ड करती हैं, तो हम उस स्कीम को ये 2020 में लॉन्च की गई थी और उनको हम एक्सचेंज कंपनीज को रिवॉर्ड करते हैं थ्रू एन इंसेंटिव। ₹1 हम देते हैं उनको अगेंस्ट ईच $1 mobilized through inward home remittances while surrendering 100% of it in the interbank market. चौथी स्कीम है जो इंसेंटिवाइज करती है फॉर मार्केटिंग ऑफ होम रेमिटेंसेस स्कीम और ये लॉन्च की गई है ताकि हम मार्केटिंग एफर्ट्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सपोर्ट करें टू अट्रैक्ट दीज रेमिटेंसेस। ये स्कीम बेसिकली अवेयरनेस प्रमोट करती है, आप लोगों के दरमियान आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं ऑफ सेंडिंग रेमिटेंसेस थ्रू फॉर्मल चैनल्स और आपको क्या फ़वाइद हैं उसके। और एक और लकी ड्रॉ स्कीम है फॉर हाई रेमिटिंग इंडिविजुअल्स और इस स्कीम में हम जो फॉर्मल चैनल्स के थ्रू पैसा भेजते हैं उनके लिए एक लकी ड्रॉ करते हैं जो कि बेसिकली अगर आप खुशकिस्मत होंगे तो आपको एक विनिंग कैश प्राइस मिलेगा उसके लिए। और फिर फाइनली हम एक्चुअली एक प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है फॉर पाकिस्तान रेमिटेंसेस इनिशिएटिव जिसमें हम सपोर्ट करते हैं उन एंटिटीज़ को जो हेल्प करती हैं इन फैसिलिटेटिंग द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस थ्रू फॉर्मल चैनल्स। तो मैं आपके साथ ये बैकग्राउंड शेयर करना चाहती थी और आपको इनकरेज करती हूँ कि आप प्लीज़ अपनी सारी रेमिटेंसेस ऑफिशियल चैनल से भेजें। इंशाल्लाह हमारी बैंकें, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमारे पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ जिनको हम याददानी कराएंगे वो आपको स्मूथली ये फ्लोज भेजने के लिए अप्रोच भी करेंगे और आपको हेल्प भी करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर का तहसीलात से मुतल्लिक़ अहम ऐलान, हुकूमती इक़दामात से मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी आई है, टैक्स नेट को मज़ीद बढ़ाने की अशद ज़रूरत है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सोनी धरती रेमिटेंस स्कीम बना ली है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएम हुकूमत की नैब तरमीम कल अदम करार दे दी। अवामी ओहदा रखने वाले तमाम अफराद के खिलाफ करप्शन केस बहाल हो गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी शामिल है। फैसले में नैब को पाबंद किया है कि करप्शन केस जहां थे वहीं से 1 हफ्ते के अंदर शुरू किए जाएं। अपने अपने जो रेफरेंसेस थे, जो उनके इंक्वायरीज थी या इन्वेस्टिगेशन थी, उन सब को क्लोज डाउन करने के लिए ये नैब की तरामीम लेकर आए थे। आज एक लिहाज से एनआरओ खत्म हो गया। नैब तरामीम कलअदम करार, अवामी ओहदा रखने वाले तमाम अफराद के करप्शन मुकदमात बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त को मंजूर किया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफी नोट लिखा। अदालत ने 500 मिलियन की हद तक के रेफरेंस नैब दायराकार से खारिज करार देने की शिक को कलअदम करार दिया। फैसले में नैब अदालतों से तरामीम के बाद कलअदम करार दिए गए केसेस भी बहाल कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि करप्शन के खत्म किए गए तमाम मुकदमात को अदालतों में 1 हफ्ते के अंदर दोबारा लगाया जाए। अवामी ओहदा रखने वाले सियासतदानों के खिलाफ करप्शन
मुकदमात भी जहां थे वहीं से शुरू किए। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शेख बहाल रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ फैसला 5 सितंबर को महफूज किया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 53 समातें की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा है, शुक्रगुजार हूं अल्लाह ने मुझसे मुल्क और इंसाफ की खिदमत ली। आखिरी केस में वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा, गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस आखिरी दिन 8 मुकदमात की समाअत की, वकला और सहाफियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, मीडिया फैसलों पर तनकीद जरूर करे लेकिन जजेस पर ना करे। वकील मियां बिलाल ने कहा, जब हाई कोर्ट में आपका पहला केस था तो भी मैं ही आपके सामने पेश हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट में आपका आखिरी केस है, तब भी पेश हो रहा हूं। जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, आपका केस तो गैर मौसर हो गया है, अगर दलाल देंगे तो दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मियां बिलाल बोले, आपने हमेशा तहम्मुल से हमें सुना। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारा फर्ज है सबको तहम्मुल से सुने। बार की जानिब से हमेशा ताउन और सीखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम कलअदम करार दिए जाने के बाद 6 साबिक वज़राए आज़म और साबिक सदर आसिफ जरदारी दोबारा नैब के रडार पर आ गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शौकत अजीज को दोबारा एहतसाब अदालतों में पेशियां भुगतना होंगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी और शौकत अजीज दोबारा एहतसाब अदालतों में पेशियां भुगतेंगे। एक लिहाज से NRO खत्म हो गया। आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स रेफरेंस दोबारा खुल गया। पार्क लेन केस भी नैब कोर्ट में चलेगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को तोशा खाना केस का दोबारा सामना करना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी का LNG रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल से वापस एहतसाब अदालत मुंतकिल होगा। राजा परवेज अशरफ को रेंटल पावर केस का सामना करना पड़ेगा। शौकत अजीज के खिलाफ दायर केस भी खुल जाएंगे। इसाक डार को एक बार फिर आमदन से जायद असासों के केस में पेशियां भुगतना होंगी। सरदार मेहताब अब्बासी, मुराद अली शाह, सलीम मांडवीवाला, शौकत तरीन, खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका, अनवर मजीद, गनी मजीद के केस भी दोबारा खुलेंगे। 30 अगस्त 2023 तक नैब से 12 रेफरेंस मुंतकिल किए गए थे। मजमूई तौर पर एहतसाब अदालतों से 22 मुकदमे वापस हुए थे। 25 मुकदमे दूसरे फोरम पर भेजे गए थे। चेयरमैन PTI पर करप्शन के 13 केस हैं। अब वो अपनी पटिशन का मजा लें। 90 दिन नैब रिमांड में रहकर दिखाएं, जमानत भी नहीं मिलेगी। राना सनाउल्लाह का नैब तरामीम कलअदम होने पर रद्द-ए-अमल। नून लीग रहनुमा ने फैसला मुतनाज़ करार देते हुए कहा, चीफ जस्टिस अपने इदारे की तबाही में अव्वल नंबर पर आ गए हैं। पीपल्स पार्टी इंतखाबी हरीफ है, उसे भी नीचे गाड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मुझसे पूछताछ नवाज शरीफ होगा। एक अमेंडमेंट के अलावा बाकी तमाम अमेंडमेंट्स को उन्होंने कलअदम करार दे दिया है। ये एक मुतनाज़ बेंच और जजेस का फैसला है। चीफ जस्टिस साहब अपने अदारे की तबाही करने वाले चीफ जस्टिस साहबान में नंबर 1 पे शुमार किया। नैब का काला कानून हमने तो इसको भुगत लिया, तो किसी और को भी भुगतने दें। PTI और इमरान खान साहब को मुबारक हो, अब वो इसको भुगतेंगे। अब 90 दिन का रिमांड काटे ना वो सारे। अब हम देखेंगे ना, जब अदालतों के पास बेल का इख्तियार ही नहीं होगा, फिर कैसे कोई अदालत उनको जो है वो बेल देगी। 13 के करीब केसेस तो इमरान खान साहब के ऊपर ही बनते हैं। अपनी इस पिटीशन का वो मजा लें। एक पेज वाली बात की जाती रही इमरान खान की गवर्नमेंट में, हम उसको दुरुस्त नहीं समझते। ये ऐलान जो है ये हतमी है। अब हमें कोई रुकावट या दिक्कत पेश आएगी। ये मिलियन से ज्यादा लोग लाहौर में अपने लीडर को खुश आमदेद कहेंगे। मुझसे आप सुन लें, अगला वजीर आजम मियां नवाज शरीफ हो। पीपल्स पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट में हमारी अलाई थी। इलेक्शन में वो हमारे मुकाबले एक सियासी जमात, उन्हें अपने पंजे गाड़ने की कोशिश भी करनी चाहिए। अब जो ये बिल आए हैं, तो ये सारी तबाही ये उस मुआहदे की वजह से है और उस मुआहदा करने वालों की वजह से। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
खुजदार कस्टम्स ने 10 रोज के दौरान चीनी और दीगर सामान की स्मगलिंग की मुतअद्दिद कोशिशें नाकाम बना दी। कस्टम कलेक्टर इमरान बुखारी की क़यादत में टीम ने कार्रवाई करते हुए 118 मेट्रिक टन चीनी कब्जे में ली, जिसकी मालियत 1 करोड़ 93 लाख रुपए है। चेक पोस्टों पर सख्त निगरानी के जरिए खुजदार कस्टम्स ने 6 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां भी तहवील में ली हैं, जिनकी मालियत 40 मिलियन रुपए है। कस्टम कलेक्टर इमरान बुखारी ने अमले को हिदायत की है स्मगलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए और मुतनब्बे किया कोई भी फर्द करप्शन में मुलव्वस पाया गया तो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खुजदार कस्टम्स ने बेहतरीन चेक एंड बैलेंस सिस्टम कायम किया है, जिसके बायस स्मगलिंग में नुमाया कमी देखी जा रही है। जमात इस्लामी मुनाफिक जमात है, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल फट पड़े, कहा कराची के बच्चों की कश्मीर और अफगान जिहाद के नाम पर जाने ली, अपने बच्चों को नहीं भेजा। अलकायदा की दहशतगर्द पकड़वाने के डॉलर लिए इनसे हाफिज नईम ने कराची में अपनी इश्तिहारी मुहिम शुरू करा रखी है। इस्लामी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, मुनाफिक लोग हैं, इनसे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं है। इस शहर के बच्चों को कश्मीर के जिहाद के नाम पर, अफगानिस्तान के जिहाद के नाम पर जाने ली, यहाँ से फंड लिए और अपने बच्चों को नहीं भेजा वहाँ पर। जितने भी अलकायदा के लोग इन्होंने अमेरिका के हवाले किए हैं, उसके जो डॉलर लिए इन्होंने, वो डॉलर आज तक हाफिज नईम के पास खत्म नहीं हुए। ये तो भत्ता नहीं लेते और इनको तो लोग चंदा भी नहीं दे रहे। पूरे शहर में अरबों रुपए की एडवर्टीजमेंट कर रखी है कि इनके झंडे, इनकी तस्वीरें खत्म ही नहीं होती। जो अमेरिकन डॉलर है जो कि अलकायदा के लोगों को गिरफ्तार करके लिए गए, ये अब्दुल्ला बिन उबई के मानने वाले, मस्जिद जर्रार वाले लोग हैं। इनसे बड़ा कोई झूठा मुनाफिक नहीं है। तारीख की पीपल्स पार्टी जो है वो अपना सुरसुख इस्तेमाल करके और यहाँ पर निगरान कैबिनेट में सियासी मदाखलत कर रही है। हम इसको रद्द करते हैं और इस पर जो है वो अपनी तशवीश का इज़हार करते हैं। और मामला ये कि मेयर कराची भूल गए, उन्होंने गटरों के ढक्कन लगाने का वादा किया था। शहर के कई गटर अब भी मौत का कुआं बने हुए हैं। शहर की मरकजी इलाके सदर की सड़क के बीचों बीच ऐसा ही कुआं मुंह खोले मौजूद है। इरशाद खान की रिपोर्ट। कराची में खुले खूनी मेन हॉल्स, मेयर कराची मुर्तजा वहाब को नजर न आए। मेयर कराची के बड़े बड़े दावे सिर्फ तकारीर तक महदूद रह गए। मुर्तजा वहाब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपने फैक्ट्री लगाई है उसमें से एक अदद मेन हॉल का ढक्कन अगर ये पार्किंग प्लाजा के पास लग जाए तो, क्योंकि यहाँ से स्कूल के बच्चे गुजरते हैं और आपको भी पता है कि कितनी अमवात हुई है बच्चों की। कल भी 2 मोटरसाइकिल गिर गया, कभी गाड़ी गिर जाता है, कभी कल 2 लेडीज गिर गया। ये फर्ज है, ये सही हो जाए। एम्प्रेस मार्केट के करीब मसरूफ तरीन शहरा पर भी खौफनाक खुला मेन हॉल इंतजामिया को मुंह चढ़ा रहा है। काफी अरसे से खुला है, इसी तरह पड़ा हुआ है, काफी सारे एक्सीडेंट हुए हैं, इधर गाड़ी वगैरह टूटी है ना, किसी ने कोई अमल दरामद नहीं किया। ये गटर खुले हुए हैं, इधर स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, इधर कोई इंतजामिया है नहीं देखने वाली। कराची में जा बजा खुले मेन हॉल्स किसी भी वक्त बड़े हादसात का सबब बन सकते हैं। इंतजामिया के दिए गए वादों पर कराची के बासी आज भी जीने पर मजबूर हैं। कहते हैं ढक्कन ढक्कन करते रहे, लेकिन मेन हॉल्स आज भी ढक्कन से महरूम हैं। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ इरशाद खान, ARY न्यूज, कराची। लाहौर के तलबा, बुजुर्गों और माजूर अफराद के लिए अच्छी खबर, 3 माह के लिए ऑरेंज लाइन फ्री कर दी गई। यूनिवर्सिटी के तलबा को ये सहूलत नहीं दी गई। रिपोर्ट करेंगे हसन हफीज। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस में मुफ्त सफर करने की सहूलत के हवाले से अनारकली स्टेशन पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि ये सहूलत तलबा के मसाइल को सामने रखते हुए 3 माह के लिए फराहम की गई है। ये जो सर्विस है ये स्कूल के जो गोइंग किड्स है उनके लिए है और वो यूनिफॉर्म में होंगे और जो स्कूल आने और जाने का जो उनके औकात है उसके अंदर इनके लिए सफरी सहूलत जो है वो बिल्कुल ही मुफ्त है, बिला मुआवजा वो ट्रैवल कर सकते हैं। तलबा का कहना है कि इस सहूलत से सफर में आसानी आएगी, लेकिन इसको मुस्तकिल किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि उस स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनके लिए कोई आने वाला नहीं है, कुछ छोड़ने वाला नहीं है। सड़कों के ऊपर बहुत ट्रैफिक रश वगैरह की वजह से हम स्कूल लेट हो जाते हैं, स्कूल से भी हमें डांट वगैरह सुननी पड़ती थी और इंशाल्लाह अब हम कभी लेट नहीं होंगे। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस में फ्री सफर करने के लिए बुजुर्ग शहरियों को शनाख्ती कार्ड, जबकि इंटरमीडिएट तलबा को यूनिफॉर्म में मलबूस स्टूडेंट कार्ड लाजमी दिखाना होगा। ताहम ये सहूलत स्पीडो बस में नहीं दी गई। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में न सिर्फ तलबा और तालिबात मुफ्त सफरी सहूलियात से मुस्तफीद हो सकेंगे, बल्कि माशरे के वो माजूर अफराद जो काफ़ी मजबूर दिखाई देते हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ हसन हफीज़, ARY न्यूज़, लाहौर।
اور ٹیکسٹائل کے لیے مشہور فیصل آباد میں جدید تراش خراش کے ملبوسات کی نمائش. ورکنگ ویمن کے لیے خصوصی ڈیزائن بھی متعارف کرائے گئے ہیں. کچھ ڈیزائن دیکھ کر قدیم دور کی بھی یاد آ گئی. نمائش کی سیر کرا رہے ہیں قمر الزمان. ٹیکسٹائل اینڈ فیشن ڈیزائننگ انسٹیٹیوٹ کے طلباء نے فائنل ڈسپلے میں پیش کردہ اپنے فن پاروں کی تیاری میں خوبصورتی اور انفرادیت کو مد نظر رکھا. وہاں پہناووں کے ذریعے معاشرتی مسائل کی بھی نشاندہی کی. اسما نے مہنگائی اور اس سے جنم لیتی معاشرتی برائیوں کو اجاگر کیا تو سانحہ 9 مئی کے بعد انٹرنیٹ بندش سے ڈیلی ویجز کی مالی مشکلات کو بھی بیان کیا. اس ٹائم پہ انفلیشن بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ بہت سے سوشل کرائمز جو ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں. طالبہ بسما نے کاروباری خواتین کے لیے آرام دہ ملبوسات ڈیزائن کیے تو زنیرہ نے ورکنگ ویمن کی مشکلات کے پیش نظر بریسٹ فیڈنگ کے لیے خصوصی لباس بنا ڈالا. طالبات کا کہنا ہے وہ مستقبل میں اپنا بزنس کریں گی. پاکستان میں جو ہے وہ بزنس وومن صرف 5% ہے تو ان کو جو ہے وہ اس طرح کے گارمنٹس یہاں پہ نہیں ملتے. ایکچولی میں بریسٹ فیڈنگ کا پروموٹ کر رہی ہوں تاکہ جو ایک مدر اور اس کا بیبی ہے آپس میں بانڈ رہے ہیں. ادارے کی ٹیچر اور تھیسس ڈسپلے کی سپروائزر یسرا سلیم کا کہنا ہے وہ طلباء کی کاوشوں سے خوش ہیں. ٹیکسٹائل اداروں کی طرف سے 4 طلباء کو جاب آفر بھی ہو گئی ہے. اب تک لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.